دوستو، کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو انسان پہلے آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا تھا، آج وہی آپ کے میسج کا جواب گھنٹوں بعد دیتا ہے؟ پہلے ہر بات شیئر کرتا تھا، ہر لمحہ آپ کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا تھا، لیکن اب اس کے پاس ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا ہے: میں مصروف ہوں۔ اور پھر آپ کے ذہن میں ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو جاتی ہے: آخر مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی؟ کیا اس کی دلچسپی ختم ہو گئی ہے؟ کیا وہ کسی اور کو پسند کرنے لگا ہے؟ آپ بار بار اپنی پرانی گفتگو پڑھتے ہیں، اپنے ہر لفظ کا تجزیہ کرتے ہیں، اپنی ہر حرکت پر شک کرتے ہیں، لیکن جتنا زیادہ آپ جواب تلاش کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ الجھتے جاتے ہیں۔ یہ احساس صرف تکلیف دہ نہیں ہوتا بلکہ انسان کی خود اعتمادی کو بھی اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر ایک مختلف زاویے سے سوچیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اکثر اوقات کسی کا اچانک دور ہو جانا، اچانک آپ کو ایوائڈ کرنا آپ کی کمی نہیں بلکہ اس کے اپنے اندر چلنے والی ایک خاموش جنگ کی علامت ہوتا ہے، تو شاید آپ کو حیرت ہو۔ جی ہاں، ہر خاموشی، ہر دوری بے وفائی نہیں ہوتی، ہر خاموشی محبت کے ختم ہونے کا اعلان نہیں ہوتی، اور ہر بدلتا ہوا رویہ اس بات کا ثبوت نہیں ہوتا کہ آپ اہم نہیں رہے یا آپ کی ویلیو نہیں رہی۔ بعض اوقات انسان آپ سے نہیں بلکہ اپنے ہی خوف، اپنی کمزوریوں اور اپنے ماضی سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ کہ جب ہمیں نظر انداز کیا جاتا ہے، ہمیں ایوائڈ کیا جاتا ہے، تو ہمارا دماغ حقیقت سے زیادہ کہانیاں بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ہم ہر خاموشی کو مسترد کیے جانے کا ثبوت سمجھ لیتے ہیں، ہر دیر سے آنے والے میسج کے جواب کو محبت ختم ہونے کی نشانی مان لیتے ہیں، اور یہی سوچ ہمیں بے چین کر دیتی ہے۔ پھر ہم اس شخص کو مزید میسج بھیجتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں: سب ٹھیک ہے؟ تم بدل کیوں گئے ہو؟ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہم رشتہ بچا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اکثر ہم اس فاصلے کو مزید بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ جب ایک شخص اندر سے دباؤ، خوف یا الجھن کا شکار ہو تو اس پر جتنا زیادہ دباؤ ڈالا جائے وہ اتنا ہی زیادہ پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ یوں ایک خطرناک چکر شروع ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جواب مانگتا ہے، وضاحت مانگتا ہے، دوسرا مزید خاموش ہو جاتا ہے۔ ایک قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا مزید دور چلا جاتا ہے، اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کھونا نہیں چاہتے، لیکن دونوں کے رویے انہیں ایک دوسرے سے دور لے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر خاموشی کی ایک ہی وجہ نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اس خاموشی کے پیچھے ایسے نفسیاتی راز چھپے ہوتے ہیں جن کا تعلق آپ سے کم اور اس انسان کی اپنی شخصیت، اس کے ماضی، اس کے اندر چھپے خوف سے زیادہ ہوتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی پیچیدہ نفسیاتی وجوہات کو سمجھیں گے تاکہ آپ صرف ان کے بدلتے ہوئے رویے کو نہ دیکھیں بلکہ اس رویے کے پیچھے چھپی حقیقت کو بھی پہچان سکے، تاکہ آپ کا رشتہ کسی ناخوشگوار انجام سے دوچار ہونے سے بچ سکے، آپ کے رشتوں میں سکون آئے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلی وجہ، وہ ایوائڈنٹ اٹیچمنٹ سٹائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نفسیات میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جسے ایوائڈنٹ اٹیچمنٹ سٹائل کہا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں ایسے لوگ محبت چاہتے تو ہیں، لیکن جب محبت بہت قریب آنا شروع ہو جائے تو وہ خود ہی فاصلے پیدا کرنے لگتے ہیں۔ اکثر اس بات کی جڑیں بچپن میں ہوتی ہیں۔ اگر کسی بچے کو اپنے جذبات کے اظہار پر بار بار نظر انداز کیا گیا ہو، اسے یہ احساس دلایا گیا ہو کہ اپنی تکلیف خود برداشت کرو، تو وہ بڑا ہو کر دوسروں پر جذباتی انحصار کرنے سے ڈرنے لگتا ہے۔ شروع میں یہی لوگ بہت دلچسپ، پر اعتماد اور محبت کرنے والے دکھائی دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی رشتہ سنجیدہ ہونے لگتا ہے ان کے اندر ایک خاموش خوف جاگ جاتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ کہیں وہ اپنی آزادی نہ کھو دے، کہیں وہ بہت زیادہ وابستہ نہ جائے، یا کہیں دوبارہ دل نہ ٹوٹ جائے۔ اس لیے وہ ایسا ایسا پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، ان کے میسج کم ہو جاتے ہیں، ملاقاتوں سے گریز شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جذباتی طور پر خود کو دور کر لیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ سے محبت کرنا چھوڑ چکے ہوں، اکثر وہ صرف اپنی اندرونی بے چینی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ مسئلہ آپ نہیں بلکہ وہ خوف ہے جو قربت کے ساتھ ان کے اندر جاگ جاتا ہے۔ دوسری وجہ، وہ جذباتی طور پر کمزور دکھائی دینے سے ڈرتے ہیں۔ ہر انسان محبت چاہتا ہے، لیکن ہر انسان اپنی کمزوریاں دکھانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ کچھ لوگوں کے لیے اپنے دل کی بات کہنا، اپنے خوف، اپنی کمیوں اور اپنے جذبات کا اظہار کرنا کسی جنگ سے کم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ بھی اکثر ان کا ماضی ہوتا ہے۔ شاید انہوں نے کبھی کسی پر اعتماد کیا ہو اور بدلے میں دھوکہ ملا ہو، یا اپنی سچائی بیان کی اور انہیں شرمندہ کیا گیا ہو۔ ایسے تجربات انسان کو یہ سکھا دیتے ہیں کہ دل کھولنا خطرناک ہے۔ چنانچہ جب رشتہ اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں گہری گفتگو، اعتماد اور مستقل وابستگی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ لاشعوری طور پر خود کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ موضوع بدل دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، یا ہر سنجیدہ بات کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ باہر سے یہ رویہ بے رخی محسوس ہوتا ہے، لیکن اندر سے یہ ایک دفاعی دیوار ہوتی ہے۔ وہ آپ سے نہیں بھاگ رہے ہوتے بلکہ ان جذبات سے بھاگ رہے ہوتے ہیں جو انہیں دوبارہ زخمی ہونے کا خوف دلاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات خاموشی نفرت کی علامت نہیں ہوتی بلکہ اس خوف کی علامت ہوتی ہے جو انسان برسوں سے
अपने अंदर छुपाए होता है। तीसरी वजह, वो अपनी जाती जिंदगी के दबाव में इस कदर उलझ चुके हैं कि जज्बाती तौर पर खाली हो गए। हर खामोशी मोहब्बत के खत्म होने की निशानी नहीं होती। बाज़ औक़ात इंसान आपसे दूर नहीं जा रहा होता, बल्कि वो अपनी जिंदगी के एक ऐसे तूफान से गुजर रहा होता है जिसके बारे में वो किसी को बताना भी नहीं चाहता। सोचे, अगर किसी शख्स पर काम का शदीद दबाव हो, माली मसैल हो, घर के हालात खराब हो या ज़हनी थकान और मुसलसल परेशानी का शिकार हो, तो उसकी पहली कुर्बानी अक्सर उसकी जज्बाती तवानाई बनती है। वो जिस्मानी तौर पर मौजूद तो होता है, लेकिन ज़हनी तौर पर हर वक्त किसी और जंग में मसरूफ रहता है। नफ्सियात में इसे इमोशनल बर्नआउट कहा जाता है। इस कैफियत में इंसान के पास इतनी तवानाई ही नहीं बचती कि वो पहले की तरह लंबी बातें करे, मोहब्बत का इजहार करे या रिश्ते में पूरी तवज्जो दे सके। वो खामोश रहने लगता है, मोबाइल में गुम रहता है, वीडियोस देखता है या गेम खेलता है, क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ एक चीज चाहता है, कुछ देर के लिए हर जिम्मेदारी से फरार। बदकिस्मती ये कि ऐसे लोग अक्सर अपनी कैफियत बयान नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि मैं बहुत ज्यादा दबाव में हूँ, मुझे कुछ वक्त चाहिए। उनकी खामोशी आपको ये महसूस कराती है कि शायद उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई है, जबकि हकीकत में वो अपनी ही ज़हनी जंग लड़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना भी जरूरी है, अगर ये खामोशी वक्ती हो तो इसे समझा जा सकता है, लेकिन अगर कोई शख्स हमेशा अपनी मुश्किलात को जवाज बनाकर आपको मुसलसल नजरअंदाज करे, आपको अवॉइड करे, आपकी मौजूदगी को अहमियत न दे और कभी खुलकर बात करने की कोशिश भी न करे, तो फिर मसला सिर्फ दबाव नहीं बल्कि ताल्लुक में जिम्मेदारी की कमी भी हो सकती है। चौथी वजह, शायद रिश्ता उस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है जिसके लिए वो अभी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं। ये वजह सबसे ज्यादा उलझन पैदा करती है, क्योंकि इसमें अक्सर वो शख्स अचानक बदल जाता है जिसने इब्तदा में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई थी। वही शख्स जो हर वक्त आपसे बात करना चाहता था, मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाता था और हर लम्हा आपके करीब रहने की कोशिश करता था, अचानक फासले बनाने लगता है। ये तजाद क्यों पैदा होता है? नफ्सियात कहती है कि कुछ लोग मोहब्बत से नहीं बल्कि मोहब्बत के बाद आने वाली जिम्मेदारियों से खौफजदा होते हैं। जब रिश्ता सिर्फ पसंदीदगी तक महदूद होता है तो सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जैसे ही मुस्तकबिल, कमिटमेंट, मुस्तकिल ताल्लुक या जिंदगी भर साथ रहने की बात सामने आती है, उनके अंदर एक खामोश खौफ बेदार हो जाता है। उन्हें महसूस होने लगता है कि शायद उनकी आजादी खत्म हो जाएगी, शायद वो अपनी शिनाख्त खो बैठेंगे, या अगर ये रिश्ता नाकाम हो गया तो उन्हें पहले से ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। यही खौफ उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करता है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे लोग अक्सर आपसे मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन उनका खौफ उनकी मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। वो सोचते हैं कि अगर आज ही कुछ फासला पैदा कर लिया जाए तो कल दिल टूटने का दर्द कम होगा। ये एक गैर शऊरी दिफाई हिकमत अमली होती है, लेकिन एक सेहतमंद ताल्लुक सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलता बल्कि एतमाद, वाज़ेह गुफ्तगू और जज्बाती पुख्तगी से चलता है। अगर दोनों अफराद अपने खौफ के बारे में बात करना सीख जाए तो यही रिश्ता मजबूत हो सकता है, लेकिन अगर खामोशी, अंदाजे और फासले ही राब्ते की जगह ले ले तो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत भी गलत फहमियों के बोझ तले दबने लगती है। जब आपका पार्टनर दूर होने लगे तो ये 4 गलतियां कभी मत करें। जब हमारा पसंदीदा इंसान अचानक बदलने लगता है तो हमारा दिल अक्सर वो फैसले कर लेता है जो हमारे हक में नहीं होते। जज्बात हमें यकीन दिलाते हैं कि अगर अभी हमने कुछ न किया तो शायद हम उस इंसान को हमेशा के लिए खो देंगे, लेकिन हकीकत यह कि ऐसे वक्त में घबराहट में किए गए फैसले अक्सर ताल्लुक को मजीद खराब कर देते हैं। पहली गलती, उसके पीछे भागना, बार बार कॉल करना, मुसलसल मैसेज भेजना, हर चंद घंटों बाद पूछना कि क्या हुआ या तुम पहले जैसे क्यों न रहे। बज़ाहिर ये मोहब्बत लगती है, लेकिन नफ्सियात के मुताबिक ये बेचैनी का इजहार होता है। जो शख्स पहले ही फासले पर जा रहा हो वो इस दबाव को मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाता। नतीजा ये निकलता है कि वो और ज्यादा खामोश हो जाता है। दूसरी गलती, हर कसूर खुद को देना। बहुत से लोग फौरन ये मान लेते हैं कि शायद उनमें कोई कमी है। वो अपनी शक्ल, अपनी शख्सियत, अपनी बातों और अपने रवैये पर शक करना शुरू कर देते हैं। याद रखें, हर बदलता हुआ रवैया आपकी नाकामी का सबूत नहीं होता। जैसा कि हमने पहले समझा, अक्सर इंसान की खामोशी उसके अपने खौफ, ज़हनी दबाव या माजी के जख्मों का नतीजा होती है। अगर आप अपनी पूरी पहचान किसी दूसरे के रवैये से जोड़ देंगे तो आपकी खुद एतमादी भी उसके साथ टूटती जाएगी। तीसरी गलती, धमकी देना या अल्टीमेटम देना। गुस्से में आकर ये कहना कि अगर आज बात नहीं की तो सब खत्म, या अब तुमने फोन ना किया तो मुझे हमेशा के लिए भूल जाना। शायद वक्ती तौर पर सामने वाले को जवाब देने पर मजबूर कर दे, लेकिन ये ताल्लुक को महफूज नहीं बनाता। ये सिर्फ खौफ और दबाव पैदा करता है, और जो शख्स पहले ही जज्बाती तौर पर पीछे हट रहा हो वो मजीद दूर जा सकता है। चौथी गलती, खेल खेलना या बदला लेने की कोशिश करना। जानबूझकर खामोश रहना, सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्टें लगाना जिससे सामने वाला जल जाए, या किसी और के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करके उसे रद्द-ए-अमल देने पर मजबूर करना। ये सब वक्ती तस्कीन तो दे सकता है, लेकिन एतमाद को खत्म कर देता है। एक मजबूत रिश्ता मुकाबला बाजी से नहीं
बल्कि दयानतदार गुफ्तगू से कायम रहता है। याद रखें, जब कोई इंसान दूर जा रहा हो तो सबसे बड़ी ताकत शोर मचाने में नहीं बल्कि अपने जज्बात काबू रखने में होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात आपका सुकून, आपकी खामोश खुद-ए-तमादी और आपका मुतवाज़न रवैया वो काम कर जाता है जो सैकड़ों वज़ाहतें और हजारों पैगामात भी नहीं कर सकते। अगर आपका पार्टनर दूर होने लगे तो आपको क्या करना चाहिए? अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बार बार पीछे जाना, खुद को कसूरवार समझना या गुस्से में रद्द-ए-अमल देना दुरुस्त नहीं, तो फिर सही रास्ता क्या है? सबसे पहले उससे कुछ जगह दें, लेकिन खामोश सजा न दें। ये दोनों चीजें एक जैसी नहीं है। जगह देने इस बात का इजहार है कि आप उसकी कैफियत का एहतराम करते हैं, जबकि खामोश सजा देना एक जज्बाती हथियार है। अगर आपको महसूस हो कि वो कुछ दिनों से बदला है तो आप बार बार पूछने के बजाय एक पुरसकून और बावकार अंदाज में इतना कह दें कि मैंने महसूस किया कि तुम कुछ दिनों से खामोश हो। अगर तुम किसी परेशानी में हो तो याद रखो, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए मौजूद हूँ। जब तुम मुनासिब समझो हम बात कर लेंगे। इस एक जुमले में दबाव भी नहीं, शक भी नहीं, बल्कि एतमाद और एहतराम दोनों मौजूद है। दूसरी अहम बात, अपनी पूरी दुनिया को उस एक इंसान के गिर्द मत घुमाएं। अक्सर लोग ताल्लुक में इतने खो जाते हैं कि उनकी अपनी जिंदगी, उनके अपने दोस्त, मशगले, ख्वाब और मकासद सब पस मंजर में चले जाते हैं। फिर जब दूसरा शख्स दूर होता है तो उन्हें यूं महसूस होता है जैसे उनकी पूरी दुनिया बिखर गई हो। नफ्सियात कहती है कि जज्बाती तौर पर मजबूत इंसान वो नहीं जो कभी किसी से मोहब्बत न करे, बल्कि वो है जो मोहब्बत के बावजूद अपनी शनाख्त बरकरार रखे, अपने काम पर तवज्जो दें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, नई चीजें सीखें, दोस्तों और खानदान के साथ वक्त गुजारें और अपनी शख्सियत को मुसलसल बेहतर बनाते रहें। जब आप अपनी जिंदगी से मुतमईन होते हैं तो आपका रवैया भी ज्यादा पुरसकून और पुरएतमाद हो जाता है, और यही एतमाद किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बनता है। और आखिर में अपनी हदूद जरूर तय करें। हमदर्द होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स को कुर्बान करना नहीं। अगर कोई शख्स वक्ती तौर पर मुश्किल में है तो उसका साथ देना मोहब्बत है, लेकिन अगर वो महीनों तक आपको नजरअंदाज करे, अवॉइड करे, आपकी बात को अहमियत न दे, आपसे बात करने से इनकार करे और आपकी जज्बाती जरूरियात को मुसलसल अहमियत न दे, तो फिर खुद से सवाल जरूर पूछे, क्या ये रिश्ता मुझे सुकून दे रहा है या सिर्फ बेचैनी? याद रखें, एक सेहतमंद ताल्लुक सिर्फ मोहब्बत पर कायम नहीं रहता, उसके लिए एहतराम, वाज़ेह गुफ्तगू, जिम्मेदारी और दोनों तरफ से मुसलसल कोशिश जरूरी है। अगर ये चीजें मौजूद ना हो तो सिर्फ एक फरीक की कुर्बानी कभी भी ताल्लुक को कामयाब नहीं बना सकती। अपनी कदर पहचानिए, क्योंकि जो इंसान अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत करना सीख लेता है वही दूसरों से भी हकीकी एहतराम हासिल करता है। दोस्तों, आखिर में सिर्फ एक बात याद रखें, अगर आपका पार्टनर अचानक दूर होने लगे तो हर बार ये मत सोचे कि आप में कोई कमी आ गई है। बाज़ औक़ात इंसान का बदलता हुआ रवैया उसकी अपनी अंदरूनी जंग, उसके माजी के जख्म, उसके खौफ या उसके ज़हनी दबाव का नतीजा होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप हमेशा इंतजार करते रहे या अपनी खुशी को किसी दूसरे के फैसलों के हवाले कर दे। एक मजबूत इंसान वो नहीं जो हर कीमत पर किसी को रोक ले, बल्कि वो है जो अपनी इज्जत नफ्स, अपने सुकून और अपनी शख्सियत को बरकरार रखते हुए सही फैसला करना जानता हो। अगर सामने वाला आपकी कदर करता है तो वो जरूर वापस आकर बात करेगा, और अगर नहीं करता तो याद रखें, किसी ऐसे शख्स के पीछे अपनी जिंदगी जाय करना दानिशमंदी नहीं जो आपकी मौजूदगी की कदर ही न जानता हो। दोस्तों, वारिस की बात का मकसद सिर्फ तल्लुकात के मसैल बताना नहीं, बल्कि आपको नफ्सियात की रोशनी में ऐसे असूल सिखाना है जो आपको जज्बाती तौर पर मजबूत, बावकार और खुद एतमाद इंसान बनाए, ताकि आपकी अपनी जिंदगी के अंदर सुकून पैदा हो और कम अज कम आपको रिश्तों के हवाले से जो मसैल होते हैं उनको आप समझ सके और उनका खुद हल ढूंढ सके। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपकी सोच में कोई मुस्बत तब्दीली पैदा की है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपने इससे क्या सीखा है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इंसानी नफ्सियात, तल्लुकात और खुद को बेहतर बनाने से मुतालिक ऐसी गहरी और हकीकत पर मबनी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच और एक नई नफ्सियाती राज के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।